ओम शांति। अभी गीत सुना। मुरली क्या है? अमृत धारा है ना? भगवान लुटा रहा है और हम बच्चों के लिए, हम बच्चों को सत्ययुगी राजाई देने के लिए। दुनिया वाले ठोकेंगे, ये सिस्टम बना हुआ है। नियम एटाई बानिয়েছে, माया ठोकबे, बाबा शिक्षा देवे, रूहानी सार्जन प्रतिकार देवे। बाबा प्रतिकार दिচ্ছে আমাদের। তাই আমাদের রোজ দিনের মুরলি একান্ত একান্ত জরুরি, কারণ এটা অমৃত ধারা। এই সময় অসুরত্বকে বিনাশ করতে গেলে, মায়াজিত হতে গেলে এই অমৃত ধারার সঙ্গে আমাদের ওতপ্রোত জড়িত থাকা দরকার, একান্ত। কে কীভাবে নেবে তার প্রোগ্রাম নিজেকে সেট করতে হবে। आज 26 तारीख 26 जून 2025 साकार बानी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। सुख का दिन समीप आ रहा है। तो बाबा की बुझाচ্ছেন, সত্যযুগ অতি আসন্ন। আমাদেরকে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে চলবে না, উঠে দাঁড়াতে হবে। সংসারেও যখন বউকে ঘরে আনা হয়, বউকে কিছুদিন সবার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হওয়ার চেষ্টা করতে হয়, তাহলে একটা প্রচার হয়ে যায় ঘরের লক্ষ্মী, ভালো বউ। শাশুড়ি আর কর্তা তারা তো বেশি দিন থাকবে না, বাকি দিন তার সুখেরই সুখের। কিন্তু অনেক বৌমারা কি করে, আগে থেকে সুখী হতে চায়, সকলকে ঠকে ঠকে। তো বাবা বলছে কি, এখানে তুমি দেবতা হতে চলছ, এখানে তোমাকে নিন্দা শুনতে হবে, কেউ বাহবা দেবে, দুঃখ সহন করতে হবে। কেউ বলে আমি তো দুঃখ দেই না, আমাকে দুঃখ দিচ্ছে। তো দুঃখ নেওয়াটা কি শ্রীমত? দুঃখ নেওয়াটাও শ্রীমত নয়। অনেকে বলে পরিস্থিতি এমন এসে যায় তখন আর পারি না, এটাই পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। কর্ম ইন্দ্রিয় জিত হতে হবে, আর তবেই সুখের দিন সমাগত এবং পরীক্ষায় পাস উইথ অনার সার্টিফিকেট বাবার থেকে প্রাপ্ত করব। प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाबा वार्निंग दिच्छे माने कि कारण बाबार जे पड़ा বা বাবা যদি সার্জন হয়ে থাকে, সার্জনের ঘন্টু
পিছনে একটা ফ্যান লাগিয়ে দাও, টেবিল ফ্যান, ওই ফ্যানটা চালিয়ে দাও, ওই ফ্যানটা চালিয়ে দাও। ওয়ার্নিং কেন দিচ্ছে? আমরা যদি নিন্দাস্তুতি মান অপমানে যদি আমরা অধীর হয়ে যাই, তাহলে আমাদের মধ্যে জ্ঞানকে ছেড়ে দেওয়ার আর ব্রাহ্মণ পরিবারের কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা আসে। এটাই আমাদের অধঃপতন। সেই জন্য বাবা ওয়ার্নিং দিচ্ছে, কারণ এখন বাবা टीचर सदगुरु। उत्तर, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं, कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सद्गति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, क्या देते हैं? रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। रूठने वालों की बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। तो बाबा का हेडलाइन तो हमें मनन चिंतन थोड़ा किया, तो ये प्रश्नोत्तर को भी हम देखेंगे। बाबा बोलছি কি, নিজেদের মধ্যে এবং টিচারের প্রতি যাতে কোনো আমাদের বিরক্তি ভাব না আসে। बाबा सत्य है, बाबा का ये ज्ञान सत्य है, আর আমরা যে করে এসেছি কর্ম এটাও সত্য, আর তার জন্যই তো পরীক্ষা। তো এই জন্য এই পরীক্ষা তো আসবে। কেউ নিন্দা করবে, কেউ স্তুতি করবে, কেউ দুঃখ দেবে। আর এটা আমি করেছিলাম বলেই তো আমার জন্য এই পরীক্ষাটা আসবে। আর বাবাকে এতে যদি তুমি তার অমান্য করো তাহলে অনেক বড় সাজা খেতে হবে, কারণ তখন বাবা ধর্মরাজ হয়ে যাবে। আর দেখবে যারা পিছিয়ে এলো তারা আগে গেল, আর আমি পরে রইলাম পরে। তখন এই গানটা বারবার গাইবে, আরে আমি তো অনেক কর্তা পুরুষ ছিলাম, আমি হেড ছিলাম, আজকে তো অনেক পিছনে পড়ে গেছি। কারণ এটা ড্রামা, এটা ড্রামার সে বিচিত্র রহস্য বাবা এখন বাচ্চাদের বলছে। इसलिए बहुत बहुत खबरदार। गीत भी सुनेंगे, इसलिए बाबा ने आज गीत कहा बहुत सुंदर, धीरज धर मनवा। धीरज धर, এত কিছুর মধ্যেও তোমাকে যদি নিন্দা স্তুতি মান অপমান আর কারোর সঙ্গে যদি বনি আনমনা হয়ে যায়, তাহলে ধৈর্য তোমাকে ধরতে হবে। অষ্টশক্তি বাবা দিয়েছে, আর आत्मार 7 गुण हमारे दरकार, और तार जन्य धैर्य दरकार। गीत सुनेंगे 1 मिनट का, तो पूरा एडजस्ट हो जाएंगे। हेडलाइन, प्रश्न उत्तर, गीत, तो पूरा पैक्ड अप प्रोग्राम मिलेगा हमको। बाबा आत्मा के बोलছে मनुआ धीरज धरो, तुम्हारे सुखेर दिन आसছে। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत तो सुना। तुम बच्चों को जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं वो सब दूर होने
के लिए यहाँ आए हो, दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी है ना, तुम जानते हो अभी हमारे दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। क्या बाबा का क्या कहा बाबा ने, दुनियाते सकलेरই কিছু না কিছু গুণ যেমন থাকবে দোষও থাকবে, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। আর যার দুঃখ দেখার স্বভাব সে সব কিছুতে দুঃখই দেখবে। পিছনে লাল লাইট অফ করো, खोटे खोटे दुख देखबे, এটা এমন কেন হলো, সেটা এমন কেন হলো, আর এটা तो नाटक, এটা ड्रामा। तो यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार के दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं, परंतु बच्चों की तकलीफ होती होगी। तो बाबा कहते हैं मधुबन যেতেও আমাদের অনেক সমস্যা হয়, ট্রেনের সমস্যা, फ्लाइटेर समस्या বা प्राकृतिक समस्या। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना तो कहाँ भीड़ होती है, कहाँ बरसात पड़ती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वो क्या कहेंगे, तीर्थ यात्रा থেকে ফিরে আসি বলবে, বলবে না। যে করেই হোক আমাকে এতটুক যখন এসেছি বাকিটাও আমাকে যেতে হবে। कहेंगे हर्जा नहीं, भगवान के पास जाते हैं ना, কিছু তো दुख। आगे तो हेटे हेटे যেত, হামাগুড়ি দিয়ে যেত, ডিগবাজি খেয়ে যেত, গড়িয়ে গড়িয়ে যেত। রাস্তায় চলা যত পথিক তাদের ধুল যদি আমি গায়ে মেখে নেই তবেই আমার জন্ম জন্মান্তরের দুঃখ পূরণ হবে, ভগবান খুশি হবেন। এটা ছিল ভক্তির মান্যতা। तो बाबा कहते हैं तो भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं ना, चाहे बद्रीनाथ जाए चाहे अमरनाथ जाए। उस दिन भी सुना ना हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ अहमदाबाद, तो एक्सीडेंटेर पर ही। तो एमन तो आसबेई परिस्थिति, ढेर के ढेर भगवान है मनुष्य के आज दुनिया में, के नय भगवान, कत भगवान बनिए दिएছি। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वो तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, तो वापिस लौट कर थोड़ी जाएंगे। चलो वृंदावन, चलो अमरनाथ। अनेके तो भोलानाथेर काছে যায় अनेक दूर हेटे हेटे, तो काँधे जल निये जाए, अनेक मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है, ये भी तुम्हारा आत्मा है, ने आत्मा है परम धाम यात्रा करा, निजेर सकल दिव्य गुण फुटिए तोला। तुम कहते हो, तुम कहेंगे हम बाप के पास जाते हैं तो बाप सबके दुख हरने वाला, यो निश्चय है ना। आजकल देखो मधुबन में कितना भीड़ होते हैं, तो बाबा को ओना रहता है, चिंता रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, तो पट में सोना पड़ता है। ये मुरली छिलो साकार मुरली, जखन शांतिवन हयनि तखन एत सिस्टेमও ছিল না। এখন যে রেজিস্ট্রেশন করে বাচ্চারা যায় তখন তাদের অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা হয়। তো আগে তো এতটা সিস্টেম ছিল না, তখন অনেকে সকলকে তো খাটে শোয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, অনেকে মাটিতে শুতে হতো, বাবার দুঃখ হতো। আর আমি তো চাই না বাচ্চাকে দুঃখ দিতে, নিচে শোয়াতে, কিন্তু কি করব বাচ্চারা এসে গেছে। तो पाठ में सोना पड़ता है। बाबा तो ही चाहता है बच्चों को पाठ में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। तो कल्प पहले भी भीड़ हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं तो पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, तो कोई फिर रॉन्क भी बनेंगे। तो कोई का ऊंचा मर्तबा मिलेगा, कोई का कम, कोई उत्तम पुरुष, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, परंतु सुख जरूर होगा सत्ययुग में। क्यों हतो बा नकर चाकर होबे, क्यों महाराजा होबे,
তার মতো, তার জন্য এই নয় এই দুনিয়ার মতো থালা নিয়ে ভিক্ষা করবে, ছেঁড়া কাপড় পরবে। শতযুগের গরিবও এখানের জমিদার থেকে অনেক অনেক বড় হবে। तो बाबा कहते हैं, तो यो भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नायक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मण ने जोर कर ले आए। तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नायक फंसाया। एमनो बोलार ब्राह्मण बच्चार अभाव नहीं जे आमाके এই জ্ঞানে এসে প্রথমে বলেনি, এখন আমি ফেসে গেছি, আমার ভক্তিই ভালো ছিল। ও যে কথায় কথায় खोट ধরে। तो पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए। এখানে ठुके ठुके শিখতে হবে, ठुके ठुके चलते হবে, झुके झुके শিখতে হবে, मरे मरे बाँचते হবে। कारण आमार 63 जन्मेर कर्मफल एखाने चुकते হবে। तो इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, जमींदार बनेंगे, राजा बनेंगे, कोई रंग भी बनने वाले हैं भविष्य में। सतयुग त्रेता में यहाँ के रंग और राव में और वहाँ के रंग और राव में रात दिन का फर्क है। तो यहाँ के राव भी दुखी है तो रंग भी दुखी है, तो वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। पार्थक्य हलो एटाई। तो आम्बानी परिवारेर की दुख नहीं, तादेर तो अर्थेर कोनो अभाव नहीं। तादेर एक छेले एत मोटा, हेवी वेट, तो फ्लाइटे कोथाओ यात्रा करते गेले तार जोन्नो स्पेशल चेयारेर व्यवस्था करते हैं। साधारण चेयारे तार ठाई है ना, एटाओ तो तार दुख। तो यह तो है ही पतित भिखारी दुनिया। भल किसके पास बहुत धन है, तो बाप समझाते हैं बच्चे ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाएगा, विनाश हो जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। तो कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला जैसे हैं, तो परंतु उन्हों को क्या पता अब यो पुरानी दुनिया बदल रही है, दुनिया विनाश होबे। आमी जे एत प्रोजेक्ट बनाচ্ছি, एत किछु तरक्की करছি, तो এটা একটা নেশা। এটা কিন্তু तो कोई समझते नहीं। मालूम होता तो फट से आ जाते। बाबाई तो खाटी, तखन ताराओ इलान मार्क्स कितना बड़ा धन कुबेर है, लेकिन इनका भी दुख हुआ। जिसके लिए इतना किया वो ही ठोक दिया। कहते हैं यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर जाएंगे कहाँ। तो शिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। अगर कोई रोड गया तो कहेंगे सदगति से रोड गया, सत्यजुग থেকে से सत्यजुगेर सुख থেকে पद থেকে से वंचित হবে। ऐसे बहुत रूठते हैं, गिरते हैं। आश्चर्यवत सुनंती बाबा का बनंती और ओहो मामा मामा माया भागंती हो जाती है। कोई तो समझते हैं बराबर इन बिगर कोई रास्ता नहीं है। तो इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। अनेके एमनो बोले आमी सारा दुनियाटाके घुरे एसेছি, सुख शांतिर एटाई प्रकृत रास्ता, आर कोथाओ नहीं। जादेर हबे हबे, जादेर हबे ना हबे ना। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। तो वहाँ अर्थात मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी है। तो कोई कहे हमारी पार्ट नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते। क्यों एमन टार्गेट बनिए रखे यदि आमी परमधामी थेके जेताम, ये दुनियाटा दुखे, ये दुखे डाल्टी दुनिया। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसे कहने से थोड़ी ही होगा, परमधाम में थोड़ी ही बैठ जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है, बच्चे यह बना बनाया
ড্রামা হ্যাঁ বানা বানায়া খেল হ্যাঁ। তোমাকে পুণ্য করতে হবে, শতযুগে যেতে হবে, আবার পাপ করবে, আবার পুণ্যের জন্য আসতে হবে। এই खेल चलছে अनादि। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर ज्ञान को छोड़ देते, बाबा को छोड़ देते, बाबा को घर में आना छोड़ देते, ब्राह्मण ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, ये आपस में ब्राह्मण परिवार संगे बनियान बनी हो जाए, तखन ज्ञान के छेड़े चले जाए। अभी तुम यहाँ क्यों आए हो? फूल बनने के लिए ना, कांटा से फूल बनने के लिए। महसूस करते हो बराबर हम कांटे से फूल बनने हैं। अनुभव करा चाहिए। अनुभवी হচ্ছে सबसे बड़ो खान खनी। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है तो फलाना ये कहते हैं ये ऐसे है इसीलिए हम नहीं जाएंगे। बाबा का घर में फलाना ये हमने फलाना दिन ऐसा এমন বলেছে, এমন ঘটনা হয়েছে আমার জন্য, তার জন্য আমি যাব না। तो बस तो रूठ कर घर में जाकर के बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं और सबसे तो भले रूठो लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाप से कभी नहीं। ये घर किसका है? बाबा का है। यज्ञ किसका है? बाबा का है। पढ़ाई किसका है? बाबा का है। तो बाबा वार्निंग देते हैं बच्चे सजाए बहुत करी है, जे सजा पाबे ताके तुम्हें कोनो रकम चिंताओ करते पारबे ना। गर्भ में जो भी सजाएं मिलती है तो वो तो साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार के कोई सजा नहीं मिलेगा। गर्भे तो साक्षात्कार एवं सत परमधामे जावार आगे सेखानेও साक्षात्कार। तो सजाएं बहुत करी है, बिगर साक्षात्कार कोई सजा मिल नहीं सकते। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। एखाने ब्राह्मण जीवन पेओ तो अगर कोई मियाँ मिट्टू किया तारो साक्षात्कार होबे। कोई केउ 4 सब्जेक्ट अच्छा रीति पढ़ा उसका भी साक्षात्कार होगा। ताकि बोलबे तुम्हारा कोई परीक्षा नहीं है, तुम परीक्षा देकर पास हो गए हो, पास हुई दनार अभी जाओ परमधाम, फिर आना सुखधाम। तो तुम पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ करके तो रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हो। इसलिए बाबा गीत भी सुनाते हैं, बचपन का दिन भूल नहीं देना। प्रथम যেদিন এসেছিলাম তখন আমি কেমন ছিলাম, আজকে माया আমাকে কেমন বানিয়ে দিয়েছে। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना जरूर है, पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं। यहाँ तुम पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, मन में रखना। ऐसा नहीं बाबा ने पढ़ाई पढ़ के छोड़ दिया तो ये ज्ञान तो यही अंदर में रखे। ऐसे उच्च उच्च बाप के पास तुम मिलने के लिए मधुबन जाते हो। कभी जास्ती आ जाता है, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है तो बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। तूफान आते हैं, रास्ते में भी तूफान आते हैं, जाकर के भी तूफान आते हैं। मधुबन में जाकर के भी कोई चीज़ ना मिला, সবাই পেয়েছে, একটা খাদ্য পদার্থ শেষ হয়ে গেছে, হতেই পারে। আমি কেন পেলাম না? সকলে পেয়েছে, আমি পেলাম না। गुलाब जाम हमें नहीं मिला। यहाँ पक्षपातित्व होता है। देखे देखे एखाने मुख विचार करे, मुख देखे देखे एखाने परिवेशन करा है। तो जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया। हमें छोटो छोटो कारण के कारण बनिएছি, आरो महाकारण बनिएছি। तो नायक जो हमें मारते हैं बिना कारणे, तो আমরা বলি बिना বাতাসে জল লড়ে না, গাছের পাতা নড়ে না। তো बिना कर्मे কারোর সঙ্গে কোনো অবিচার হয় না, কাউকে কেউ কথা শোনাবে না। तो उस पिछड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खून नाहेक पार्ट। रक्तेर नदी बइबे, हानाहानी मारामारी काटाकाटी। तो अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे,
ढेर के ढेर मरेंगे। तो यो खून नाहेक खेल हुआ ना। 12 दिन পরে ইসরায়েল ইরানের যুদ্ধ সিজ ফায়ার হয়েছে, আবার শুরু হয়েছে। অন্তিম সময় তো কেউ কাউর কথা মানবেই না। আবার শুরু হয়েছে ইসরায়েল আর গাজার মধ্যে। এখন এমনই হবে, পশ্চিমী দেশের মধ্যে তাদের তরক্ষী দেখানোর জন্য কে কতটা বলবান। আমার পাশের দেশকে আমি উন্নত হতে দেব না, ছোট্ট একটা কারণ নিয়ে बम ठोके दिल। तो ऐसा ही होगा जब पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता खून नाहेक पार्ट, तखन आमरा की करे रक्षा पाबो। एटार जन्य कोनो आमादेर कोनो प्रस्तुति आछे ना, बर्तमान के निये खूब व्यस्त। तो बाबा कहते अचानक बम्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खून नाहेक खेल हुआ ना। इतना लाश गिरेंगे कारो सत्कार करार मतो कोनो व्यवस्था थाकबे ना, एत जखम होबे कोनो हासपाताल थाकबे ना चिकित्सा करार जन्य। तो अज्ञानी मानुष ऐसे चिल्लाएंगे पानी दो, रक्षा करो, बचाओ। तो तुम बच्चे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना है। तो अनेक धर्मों का विनाश ना हो, एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। तो सत्ययुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तखनी थाकबे तोमादेर एमन मेंटल लेवल और तादेर थाकबे चिल्ला चिल्ली दौड़ा दौड़ी। तो किसको क्या पता सत्ययुग आदि में क्या था। तो यो है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने, तो सबका बाप है ना। बाबा कहते हैं अहिल्याओं की भी में बाप हो, कृष्ण का भी बाप हो, तो गुरु का भी बाप हो। ड्रामा को तो तुम बच्चे जान गए हो, सब तो सत्ययुग में नहीं आएंगे। इतने करोड़ आत्माएं सत्ययुग में थोड़ी ही आएंगे। यह है डिटेल की बात। तुम बच्चियां हैं जो कुछ भी, तो बच्चियां हैं कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं। भक्तिर पराकाष्ठाते एतटाई आमरा विभोल, एटा ना करले जानो आमार पाप हये जाबे, श्राप लागबे, गुरु आमाके अभिशाप देबे, एमनटा नय, एमनटा नय। तो ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके जारा और भक्ति शेष ना होले ज्ञान केउ तो धरते पारबे ना, ताके तो भक्ति करतेई हबे। तो भक्ति की आदत पड़ी हुई है। ओई दिन क्लासे बला हयेछे ना, एक दिन कोनो चक्करे पड़े अज्ञानीर हाथे खेले पाप होबे होबे ना, किन्तु बार बार यदि खेते थाकी ताहले एटा अभ्यासे परिणत होबे। तखन एटाई करते थाकबो, आमार कामाइर जागाते आमार नुकसान होतेई थाकबे। कहते हैं ना भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं फलाना गुरु मरे हुए मनुष्य को जगा कर दिखाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकते क्या? या तुम्हारा कौन सा भगवान है? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। तो आज दुनिया में कितना गुरु का प्रवचन चलता है, एक का साथ एक का कंपटीशन होता है। तो बाबा ने कहा जेखाने भीड़ भाड़ सेखाने सत्य किछु नेই, और जेखाने भीड़ नहीं सेखाने सत्य। और मानुष उल्टा बुझे। तो फिर तो उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे गुरुओं का। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पर आते हैं, फिर इतने थोड़ी क्यों? एटाও क्यों प्रश्न करबे? अरे तुम्हारे 25 বছরের इंस्टीट्यूशन एत कम संख्यक क्यों? 25,000 हवा उचित छिलो। तो इतने थोड़ी क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं। अरे बाबा कहते अरे यहाँ तो मरना होता है। विवेकानंद के एक बार रामकृष्ण परमहंसदेव बोलेছিলেন একটা কাপে জল আছে, তুমি মনে করো একটা মাছি, তুমি কি এটা চারিদিকে ঘুরবে না এটাকে এটার মধ্যে ডুব লাগাবে? তো বলল আমি ঘুরেই চলে যাব। তখন বিবেকানন্দ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়নি।
বলছে আরে পাগল, যদি নাই ডুবিস বাঁচবি কি করে? নাই ডুবিস বললে আমি ডুবলে তো মরেই যাব। বলে না, এই জ্ঞান মার্গ ডুবতে হয়, ঘুরে चले গেলে হবে না। बाबा का गीत है ना, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। কোনো আত্মা এসে চক্কর লাগিয়ে চলে যায়, কেউ এসে বাইরে থেকে জাজ করে এখানে কি হচ্ছে, আর কেউ এসে 7 দিন কোর্স করে বলছে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। অনেকে অনেক কারণ বানায়, এটা যার যার पार्ट। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ तो मरना होता है, बलिहार जाना होता है। बाबा ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, ये धन भी आपका है। तो और वहाँ तो गुरु गोसाई के पास जाओ, সেখানে तो काने मंत्र कांद्रस है। तो बड़े भटक से बैठ गीता सुनाते हैं, तो भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कांद्रस की कोई बात नहीं, यहाँ क्या है, मंद्रस है, मन को शांत शीतल करने का। कार दिन कौन महावाक्य शीतलता आनयन करबे এটা बाबा जाने और ड्रामा जाने। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है ना, एक ही अक्षर है, मन मना भावा। तो 1 सेकेंड तुम्हार जन्य कौन दिन आसबे এটা बाबाओ जाने ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से बस सेंटर से रूठ जाते हैं, तो अच्छा ये तो काम करो और सत्संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। कोनो ब्राह्मणी के पसंद है ना, जाके देखते नारी तार चलन बाका। तो बाप को याद करो, तार जन्य बाबा बोलছে ठीक है, নিজেকে आत्मा प्रैक्टिस करो, बाबा के चार्ट दो, बाबा के चार्ट पाठाओ मधुबने, शेष रक्षा पावे। तो बाप ही पतित पावन है ना, बस बाप को याद करते रहो। और क्या करो, क्या करो, सदर्शन चक्र घुमाओ, सदर्शन चक्र घुमाओ, फिर आते रहो। इतना याद किया तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, स्वर्गे ठाई हबे। तो स्वर्ग में उच्च पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। तो प्रजा बनानी पड़े, महाराजा कुर्सी में बैठना है, महाराजा बनना है तो खूब सेवा करो, नहीं तो राजा किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं उच्च पद भी वही पाएंगे ना। उच्च पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं आज के दुनियाते, कत टेट कत किछु दे, भालो चाकरी पाबे बोले, भालो पद पोजिशन पाबे बोले। तो पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं भगवान के, परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था ना, भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और एखाने 7 आश्चर्य निये दौड़ादौड़ी, चीनेर प्राचीर, भारतेर ताजमहल, एटा सेटा। तो यो 7 वंडर्स माया का है। आईफेल टावर, तो सारे ड्रामा में बाबा बोलছে कि এটা माया, और এটাই হচ্ছে আসল बाबार पुरस्कार। तो सारे ड्रामा में उच्चते उच्च स्वर्ग, नीचेते नीच नरक। तो अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, तो उनको कौन भूलेंगे, कौन भूलेंगे। मैं भी नहीं भूलूंगा, और मेरा आसपास जो है उनको भी बोलने नहीं दूंगा, उनको भी मैं सजा करूंगा, उनको भी हाथ पकड़ पकड़ करके मैं चलाऊंगा। तो भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, तो बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते? भगवानुवाचो न कि ब्रह्मानुवाचो, भगवानुवाचो। এটা মেনে চলে আমাদের প্রতি কদমে কদমে চলতে হবে, এমন নয়। তো আসলে সবটাই আমাদের কার্মিক অ্যাকাউন্ট। আহমেদাবাদে প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অনেক বাবার বাচ্চাও ছিল। তো বাবার বাচ্চা কোন প্রকারের বাবার বাচ্চা? পাক্কা শ্রীমতে চলা না, নাকি
हल्का फुल्का श्रीमते चला, पक्का श्रीमते बच्चा तो उस समय टचिंग होगा, तुम इस फ्लाइट में मत जाओ, ये बाबा का गारंटी है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे तो बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, सतयुग त्रेता में तुम्हारा पास कितना धन महल मर्यादा था, तो তোমাদের এত দুর্গতি কেন হয়েছে? মনকেই তুমি বশ করতে পারছো না, আর পাঁচ কর্ম ইন্দ্রিয় তো অনেক দূরের কথা। তো কেন তোমার এত দুর্গতি? परंतु सुनते ऐसे हैं, এত বড় ভগবানের মহাবাক্য। আজকে যে আমরা কোর্ট বোর্ডে আমরা বাবু হচ্ছি, এটা বাবুগিরি নয়। বাবুগিরি হচ্ছে মনে, বুদ্ধিতে, সংস্কারে, কর্মে, কর্তব্যে। বাবা কিন্তু এটাই দেখে, আত্মাকে দেখে, দেখেনে। আর বাবুগিরি তো শরীরে, আর এখানে তো বাবুগিরি নেই। তো বাবা বলছে কি এটাই তোমাদের দুর্গতি। আর অনেক বাচ্চাকে বললেও বলে এই কানে শুনে এখানে বেরিয়ে দে, अरे বাইরের দুনিয়াটা কত সুন্দর। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा भी सब सहन करना पड़ेगा। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने देरी नहीं करते, स्ट्राइक। यंग जनरेशन है ना, बातों बातों में स्ट्राइक करते हैं। और कहाँ कहीं कभार तो ये कभी मेहमानबाजी भी करेंगे, कभी पत्थर भी फेंकेंगे। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है ना, न्यू जनरेशन, और तार जन्य कि पत्थर मारबे, एटा कि स्कूलेर पढ़ा? तो बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। एटा मने करे सरकार चालाচ্ছে। আরে যুবা পিড়ি যদি না উঠে, যুবাই শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড, আর এখন তারা কি পালনা পাচ্ছে। কোনো কোনো সরকার তো ফ্রি মোবাইল দিচ্ছে, বাইসাইকেল দিচ্ছে, কোথাও কোথাও স্কুটি দিচ্ছে। ভোটের রাজনীতি है ना, हम तो समझदार हैं। तो बाबा कहते ये यंग जनरेशन थोड़ी ही है, यंग जनरेशन यहाँ है। ऐसा सारा पृथ्वी में 140 कंट्री में 9000 केंद्र है, ये भी एक केंद्र है। यहाँ से कोई ऐसा पक्का पुरुषार्थ करके नंबर 1 में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो न्यू ब्लड नहीं, न्यू ब्लड ये है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकाल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का देखो क्या हाल है, क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर फिर भी ड्रामा के आदि मध्य और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते, तो उन्हें क्या पड़े। এটা বিশ্ববিদ্যালয়, বাইরে থেকেও দেখছে, এখানেও এসে অনুভব করছে। আর তারা যদি এতটুকু লৌকিক পড়ার জন্য কত কিছু। কালকে টিভিতে দেখলাম ভারতের একজন মহাকাশচারী যাচ্ছেন, নামটা ভুলে গেছি। তো হ্যাঁ, কে বলতে পারবে? हाँ हाँ शुभांशु, देखो कितना ध्यान देते हैं न्यूज़ पर। शुभांशु नामे एक छेले नवश्चर है, तो ये जाच्छे, तो महाकाशचारी हो जाच्छे। तो बाबा कहते हैं तो ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा का मुख्य एक्टर्स को नहीं जानते, वो क्या पढ़े। तो बड़े से बड़ा कौन है उनकी बायोग्राफी तो जानना चाहिए ना, तो कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, तो धर्मस्थापक का क्या पार्ट है। धर्मस्थापकेर पार्ट आछे, सन्यासीदेर पार्ट आछे, गुरु गोसाईर पार्ट आछे। तो मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसिस्टार कह देते हैं, সেই আমার গুরু, সে একটু ভালো চমৎকার দেখিয়েছে তাকে গিয়ে ধরি। আরে গুরু তো আমার আগে মরে যাবে, সে আমাকে কি করে নিয়ে যাবে? আর সে সদ্গুরু কি করে হলো? আমিও তো তার আগে মরে যেতে পারি, তো সে আমাকে ওপারের রাস্তাটা বলতে পারবে? এখানেই আমাদের প্রবলেম।
गुरु निये प्रॉब्लेम, भक्ति निये प्रॉब्लेम, शुद्ध भोजन निये प्रॉब्लेम। अरे भगवान एखाने देवता बनाते एसेছে, एखाने शोक दुख निंदा स्तुति किछु तो सहन करतेई हबे ना, सुनतेई हबे ना। तो अंधश्रद्धाते आसे जाके ताके गुरु बनिए दे। तो गुरु तो वो जो सद्गति करता है, वो तो एक शिव भगवान है, वो जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं, कोई पाठ भी नहीं करता। तो अब सर्व का सद्गति दाता एक ही परमपिता परमात्मा है, वो परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही क्या है, वंडरफुल। এত কিছু জেনে বাবার পড়াশোনা কি বলবো, ওয়ান্ডারফুল। কাল 24 तारीख সবাই এসেছেন, घर ভরে গেছে। तो बाबा को थैंक्स, आपको सबको थैंक्स। कोई आना नहीं पाया, मिस किया। ड्रामा में इनका ऐसा ही पार्ट है, फिर आएंगे। तो हम तो सबको जानकारी देते हैं, क्लास में भी बोलते हैं, फ़ोन पर भी बोलते हैं। कोई विशेष प्रोग्राम है तो कुट काटछाट करना चाहिए। माम्मा এটা আমি বলছি না, আমাদের বেহেনজি বলে গেছে। তো আমার মার যদি কোনো শ্রাদ্ধের দিন হয়, আমি যতই বিলাতে থাকি না কেন, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, তো আমি কি আমার কাজটাকে বড় মনে করব না মার শ্রাদ্ধটাকে মনে করব? বাবার শ্রাদ্ধ, মার শ্রাদ্ধ, ওটার জন্য যদি কোনো অজুহাত দেই, ওটা কি উচিত? আমার এই জ্ঞান আমি প্রাপ্ত করছি না। আমার কোন বোন শরীর ছাড়ল ওই দিনে, এই যে আসছে 22শে সেপ্টেম্বর, কি হয় আমি জানি না, মধুবন থেকে অনেকেই আসবে। তো আমরা যদি অজুহাত দেই, আগরতলা বড় প্রোগ্রাম হতে পারে, উদয়পুর হতে পারে, আমি জানি না কি হয়, মিটিংয়ে কি হয়। তো আমার বোনের যারা আমাদেরকে চলা শিখিয়েছে, বলা শিখিয়েছে, তো এগুলাকে আমরা স্কিপ করা ঠিক নয়। লৌকিক কোনো অনুষ্ঠানকে আমরা ম্যানেজ করি, আর এরকম প্রোগ্রামে যদি আমরা কাউকে বলি তো অজুহাত দেখিয়ে দেয়, এটা ঈশ্বরীয় পরিবারে ঠিক নয়। আমি তো একটা সময় ব্যয় করে ব্যক্তিকে ফোন করলাম না, এমন তো নয় একটা মহা সমস্যা হয়ে গেছে। तो वो परम गुरु भी है, नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी है, वंडरफुल। ये पाठ भी वंडरफुल है, धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों का खलास भी करते हैं। देखो अंतिम पाठ, सभी धर्मों का खलास तुमको ले जाएंगे। तो और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाला को ही गुरु कहेंगे ना। स्थापना कर सके ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण बच्चार द्वारा शिव भगवान, और विनाश कर सके तो विनाश ये दुनियार बम बनाने वाले यूरोप वाले, नेटो कंट्री। तो बाबा कहते हैं कालों का काल महाकाल में हो, तो एक धर्म की स्थापना, बाकी धर्म का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञों में साहा हो जाएंगे, जार किछु जमानो कामानो आछे साहा हो जाएंगे, एमन कि तुम्हार शरीरटाओ साहा होबे। এই জন্যই এই যজ্ঞের নাম অবিনাশী, অশ্বমেধ, রুদ্র, গীতা, জ্ঞান যজ্ঞ। এখানে লুকিয়ে রাখার, বাঁচিয়ে রাখার কিছু নেই। तो फिर ना कोई लड़ाई लगेगी सत्ययुग में, ना यज्ञ रचा जाएगा सत्ययुग त्रेता में। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। तो और যারা জানে না তারা বলে নেতি নেতি, আমরা জানি না। ঋষিमुनिरा বলেছে আমরা জানি না রচনা আর রচয়িতা রহস্য। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे আমরা জানি না, আমরা জানি, सब কিছু জানি, ভালোভাবে জানি। तो बाप बिगर और कोई समझा ना सके, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कहना तो चाहिए, खुशी होनी चाहिए, इतना अविनाशी ज्ञान हमको मिला। स्वयं बाप आकर के टीचर होकर के पढ़ाते हैं, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद भी मिठा देती है। এখানে যুদ্ধটাই এমন, বাপ উঁচা করবে, মায়া এসে নিচা করবে। একদিন উঁচা নিচা নিচা হতে হতে উঁচে উঠে যাবে, কেউ নিচে পড়ে থাকবে। সেই জন্য মায়াকে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ নয়। মায়াকে চেনা যেমন যতটুকু
आत्मा के चेना যতটুকু बाबा के चेना ततटुकु माया के चेना। तो तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। तो यो तो कोई यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। वास्तव में एखाने भगवान जे भगवान काउके बच्चा बच्चा बोलेई एखाने बाबा सम्बोधन करे, मिठे मिठे सिकिला दे बोले बाबा पढ़ार मध्य तो कोनो अपमान नहीं। किन्तु आमार कार्मिक अ্যাকাউন্টে यदि अपमानेर पार्ट थाके तो एखानेई किन्तु आमाके पेते हबे। ब्राह्मण परिवार अनेक बार बोलेছি, कारण এটা আমাদের আরও বোঝা দরকার। আমরা সবাই পাঠধারী, আমরা যা করেছি আমার জন্য সেটাই হতে চলেছে। আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবার হলো পরীক্ষার হল, আর এক এক ব্রাহ্মণ পরীক্ষার পেপার। কারণ সত্যযুগ থেকে আমরা এখন পর্যন্ত পাঠ করছি, কেউ না কেউর সম্বন্ধ হয়। तो अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पाप लगता है। কোনো অন্যায় করেছি, কাউকে কিছু দুঃশব্দ বলে দিছি, তো আর রবিবারের প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে অমৃতবেলার 10 মিনিট, লাস্টের 10 মিনিট, 4টা থেকে তো 4:45, তো 4:35-এ যে আত্মাকে আমি দুঃখ দিয়েছি বলে মনে হয়, আর যে আত্মার আমাকে দুঃখ দিয়েছে মনে হয়, এক এক করে প্রথম যাকে আমি দুঃখ দিয়েছি বা যারা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, অপমান করেছে, আমাকে অসহযোগ করেছে, অবিশ্বাস করেছে, নিন্দা করেছে, তো তাদেরকে ফরিস্তা হয়ে বতনে যাব আর তাদেরকে সামনে বাবাকে বলবো, বাবা আমার জীবনে তেমন ঘটনা হয়ে গেছে। তো বাবা দেখবে তাদেরকে ইমার্জ করাবে, ভাসিয়ে তুলবে সেই ফরিস্তা। তাদেরকে দেখে তাদেরকে করজোড়ে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি আমি করে থাকি, তারা যদি করে থাকে তাহলে তাদেরকেও ক্ষমা। তো একটা মানুষ সারা জীবন দুঃখ বয়ে বেড়ায়, একটা কুকুর, ওই দিনও বলেছিলাম, একটা কুকুর মুহূর্তে ভুলে যায়, কিন্তু 12 বছর পর সে তার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু আমরা মানুষ মানতে পারি না বলে ডিপ্রেশন, টেনশন, কত রকমের মনোরোগ আমাদেরকে এসে বাসা বাঁধে। बाबा बड़ा सर्जन है, ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, उनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा कहा जाता है। यहाँ लगता है, यहाँ नहीं, यहाँ भले लगाए लेकिन यहाँ भी लगाना है। ज्ञान अंजन सदगुरु ने दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो जादू आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने के लिए। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगा। तो इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं, इन पर जीत पानी है। पवित्र হচ্ছি না বলেই ধারণা হয় না, ধারণা হয় না বলেই আগেরও পাপ আর নতুনও পাপ আর মিলেমিশে পাত্তর হয়ে যায়। तो खुद ही विकार में जाते होगा तो दूसरों को कैसे कहेंगे? काम महाशत्रु है। तो यहाँ तो ये तो महापाप हो जाएगा ना। तो बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। कहानी तो अनेक बार बोली थी। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का कोई अंत नहीं, सागर का भी कोई अंत नहीं है, तो ब्रह्म तत्व का भी कोई अंत नहीं। সেই ব্রহ্ম তত্ত্বে আমি আত্মা, তো মন বুদ্ধি উমং উৎসাহের পাংখা দিয়ে উড়ে এই জ্ঞান যা পেয়েছি, এই জ্ঞানের তেল দিয়ে এই প্রদীপ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে আমি ব্রহ্ম মহাতত্ত্বে যাব, 1 সেকেন্ডে যাব। তো এটাই হলো রাম রাম कहते তো সাগর পার হোনা। এই স্থূল সাগরের কথা নয়। तो यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं। विज्ञानी लोग, साइंटिस्ट बहुत कुछ करते हैं, चांद में जाते हैं, मंगल ग्रह में जाते हैं, प्राणेर कोनो अस्तित्व पाए कि ना। वहाँ कोई तो सत्ययुग में कोई पुरुषार्थ नहीं करते। तो यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट तो आना चाहिए ना। নভশ্চররা যাচ্ছে, তারা ফিরে আসার প্রস্তুতিও তো তাদের কাছে আছে। এত দূর যাবে যাতে এতদিন পরে আবার পৃথিবীতে আসা যায়। तो पेट्रोल नहीं होगा तो आएंगे कैसे?
तो यह है साइंस वालों का अति का अहंकार। तो उनसे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो उनसे अति दुख भी है। तो आज ये मुरली भी सुना, साथ में तो आलोचना হয়েছে আহমেদাবাদের কথা। তাদের জন্য আমরা অনেক শুভভাবনা রাখবো তাদের পরিবারের প্রতি। আর যে নববৎসর গেছে ভারতীয়, তার প্রতিও আমরা অনেক শুভভাবনা রাখবো। কারণ আমরা সাচ্চা বাবা বলছে কি তোমরাই হলে নিউ ব্লাড, তোমরাই দুনিয়াটাকে পরিবর্তন করবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, किसी भी कारण से पराई नहीं छोड़नी है। किसी भी कारण, सजाए बहुत करी है, उनसे बचने के लिए और सब संतोर एक बाप को याद करना है। रोटना नहीं है। दो नंबर, ज्ञान इंजेक्शन बा अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। तो कि बोलছে बाबा कोनो प्रकारे जेन पड़ा ना छड़ी करा साजा खेते हबे, तार जन्य अनेक संग थेके छड़िए एक बाप को याद करना और रोटना नहीं, विरक्त हब ना, मन के खराब करब ना, कारो प्रति कोनो रकम आरोप लगाबो ना। दूसरा, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपाने नहीं। कोनो किछु यदि भूले चक्करे हो जाए, बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आदत हबे ना, बाप के जानाले परे तो बाबा किन्तु शक्ति देय, सकाश देय, रोशनी प्राप्त है। तो वरदान, तन की तंदुरुस्ती, शरीरेर स्वस्थता, मन की खुशी, धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो मनेर तंदुरुस्ती किभाबे आसबे? जिम गेले परे, एक्सरसाइज में जाने के लिए, जाने से वो तो जाएंगे, जो करता है तो करे। लेकिन एमन करारो अनेक व्यक्ति आमी देखेছি, एमन मोटा शरीर, एकदम डरपोक, मन एकदम दुर्बल। एमन अनेक देखेছি जे कोথাও যাবার কথা শুনলে কোনো একটা প্রোগ্রাম হাতে আসলে আইবিএস প্রবলেম শুরু হয়ে যায়। আইবিএস, ইরিটেবল বাউল সিকডমস, যখন তখন পেট মোচড়াবে। তো তার মন শক্ত কোথায়? শরীরে না সুস্থ। এখানে বাবা বলছে কি শরীর তখন সুস্থ হবে যখন স্वस्थिति पर स्थित रहेंगे। আর মনের খুশি কখন হবে? তো মন মনা ভাব যখন আমরা হতে পারি, মন মনা ভাব,
আর ধনের সমৃদ্ধি, যত এই জ্ঞান শুনবো এই জ্ঞান যত বাড়ব, ঠিক না? তো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা আমরা হব। শরীরেরও খেয়াল রাখবো, धनेरो ख्याल रखबो और मनेरो ख्याल रखबो। संगम युग पर स्वस्थिति में रहने से तन का कर्मभोग सूली से काटा हो जाएंगे। शूले चढ़ार कथा छिलो, सेखाने एकटा पाये काटा पड़बे। तन का रोग योग से परिवर्तन कर देते हो, इसीलिए सदा स्वस्थ रहते हो। मनमना बाबा होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन का खुशी भी प्राप्त। और धन, ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ धन है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति शतो दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ हो जाता है। माम्मार एक महावाक्य पेয়েছি, लाइनटा शेष करी। तो संबंध भी एक साथ है, प्रकृति दासी हो जाए, सर्व संबंध एक के साथ है, संपर्क भी तो होली हंस से है, इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान शत प्राप्त होता है। तो प्रसंगक्रमे एक कथा आसছে, আমরা অনেকে দেখেছি ক্রোধ এলে পরে মাটির মধ্যে খুব জোরে জোরে লাথি মারি, অনেকে মারি। আমরা এখানে তো ব্রাহ্মণ বাচ্চাকেও মারি না, এটাও কিন্তু প্রকৃতিকে দোষ দেওয়া। মাম্মা বলেছে কেউ যদি জোরে জোরে ধাপ 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 করে হাঁটে, এটাও কিন্তু প্রকৃতিকে দোষ দেওয়া। এখন নিজে নিজে মনন চিন্তন করে বের করা, আমি যে শ্বাস নিচ্ছি আমি নিজেও জানি না, কতবার নিচ্ছি কতবার ছাড়ছি। এই প্রকৃতি আমাকে এই ইঞ্জিনের মধ্যে এমন একটা সিস্টেম দিয়ে রেখেছে, আর এটাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাচ্ছি? এটা কি সুস্থ স্বাভাবিক? ওই দিন বলা হয়েছে 10 বার নেবেন 21শে তো জুন যোগা দিবসে 10 বার, মানে শ্বাস 10 বার নিলে 20 বারে ছাড়বেন। এটাই হবে আয়ু বৃদ্ধির একমাত্র কারিগর। সারাদিন তো পারবেন না, 5-10 মিনিট অবসর করে। আর প্রকৃতির যত কিছু ক্ষিতি অপতেজ মরুত বোম, এই 5 তত্ত্বকে সহযোগী দেওয়া, সহযোগ করা, তবেই তো দাসী হবে। তাকে লাথি মারলাম, তাকে থুতু ফেললাম, জায়গায় অজায়গায়, ডাস্টবিন আছে সেখানে ফেলো, वॉशरूम আছে সেখানে ফেলো, है ना? तो ये बहुत गहराई शिक्षा बाबा देते हैं। स्लोगन याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही, याद और सेवा तो दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है, सेफ डबल लॉक है। সেখানে মায়া, মায়ার বোন কেউ আসতে পারবে না, মায়াবন আসতে পারবে না, মায়াবন আসতে পারবে না। ওই রবীন্দ্রনগরের মায়াবন। আগে সুনীল ভাইয়ের যুগলও ছিল, মায়া দিদি আমরা একটু হাসি মজাক করতাম। अच्छा, आज की अव्यक्त इशारा, जैसे अनेक जन्मों आपकी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, तो वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी तो नहीं करेंगे क्या? शरीर को तो सारा दिन देखছি, ये हाथ, ये चामड़ा, ये आंगुल, ये मुख, ये चोख, आयनार सामने देखছি যেটা দেখা যায় না, যেটাকে দেখা যায় চোখের সামনে আনছি। চোখ তো আর নিজে দেখতে পারি না, আয়নার সামনে যাই, কিন্তু आत्मा के देखार प्रैक्टिस कतटा। तो ये पहले पाठ कंप्लीट करो, तब तो अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं का साक्षात्कार कराने का निमित्त बनेंगे, निमित्त बनेंगे। आज का तखनी आमादेर बाबा बोले कि निउ ब्लाड तखनी आमरा दिते पारबो, श्वासे 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 दिते पारबो। आजकेर समान होच्छे मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ।